Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually go over what we predicted in the weekly analysis. Additionally, okay, now see exactly what I'm saying, exactly it's happening that way. For this, I deserve 400 likes on this video. Because if you don't give me that, I'm not going to give you the good logics then in the next video. मैं आपको टाइम पास वाले लॉजिक्स दूंगा मैं इसलिए मुझे लाइक्स दे दो उससे अच्छा ठीक है तो बैंटर असाइड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस बैंक निफ्टी एनालिसिस first thing, let's go over what we did in this entire week. Okay, we had basically short bias. Okay, here now why did we have the short bias? Let's go over it. हाँ चलो केस वन देख लेते हैं हम अभी. ओके तो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू टू स्ट्रॉन्ग बार्स. ओके एंड देन बेसिकली पॉज वीक एंड फिर नीचे आता है ये वीक में. देखो 15 अप्रैल में. सो हमारे वीक में व्हाट कैन वी सी टू स्ट्रॉन्ग बार्स, वन पॉज वीक एंड देन डाउन मूव. ओके एज ऑफ नाउ. ओके तो यहाँ पे सेकंड वाला हमारा सेकंड सिनेरियो क्या है? ग्रीन 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 एंड देन अ डाउन मूव. तो हमारा 1 2 3 हमारा थर्ड पॉज था, इसका थर्ड स्ट्रॉन्ग है. बट देन आफ्टर दैट वी सॉ डाउन मूव वन टाइम एटलीस्ट. एंड सी दीज टू स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसका एक डाउन मूव आता है. ओके नाउ दिस टेल्स मी कि इसमें like the probability of the market coming down was very 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 high. Okay so that's why we made damn good money today in call selling. Okay see additionally over the weekend I first time I spoke about OI data and मैं हर बार बात नहीं करता हूँ इसके बारे में क्योंकि ये बहुत इफी वाला चीज है. मतलब कभी कभी this works, कभी कभी it doesn't. Now when I saw that one scenario I told you I was seeing a lot of put change in OI जो है ना, that was on the negative side. put का change in OI. ठीक है, which means put writers were getting scared, which means the option writers think market will go down, which means we have to take a short trade. Okay now what we are going to do, okay now what we are going to see, where is the support and resistance for tomorrow सबसे पहले. तो today we broke the previous all time high. Okay and उसके नीचे आके कैंडल क्लोज दी है. दिस इज अ वेरी वेरी बेरिश साइन, जिसमें कुछ बुलिश नहीं है मेरे हिसाब से. तो ठीक है, तो दिस इज अ बेरिश साइन फॉर अस. And now I think acha support where we'll get, okay, we'll get near 51,800. And you remember I told you market has gone up quickly, so it will come down also quickly. It will not like wait then come up a sort of thing. So I have not bet like huge on this all time high previously 53,350. उसको market ने respect नहीं किया है आज, उसके भी नीचे it has come and closed. Okay so this is invalid for me. Now I am looking for market to come here 51,800 के आसपास. If I get 51,800 का level, I'm going to try to initiate a buy trade in Bank Nifty. Why? Because this is going to go up. ये resistance था. Okay, resistance will turn into support. So whenever it comes down, it is expected to take a support there. So be very cautious in your short trades if the market comes down for 1 or 2 days more. Because then market नीचे आएगा और आएगा 2 दिन तक, तो 51,750 के आसपास ही रहने वाला है वो. I think यहाँ तक clear रहेगा. फिर resistance, what can we expect? See this level 53,750. See this level is a resistance for me because 1 2 3 ये सब इसने टाइम बहुत स्पेंड किया है मार्केट ने वहां पे. ओके सो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल फॉर मी. एंड यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, see below this if market sustains for 15 to 30 minutes we are going to only take a short trade then. ठीक है, उसके बाद बाय नहीं करेंगे हम. तो I'll go over my trade also what I did, but as of now support we spoke about कि यहाँ पे सपोर्ट है नीचे 51,800 पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे 53,800 पे. सिंपल. ओके इजी कर दो आपका काम. ऑल्सो सी आज का ऑप्शन चेन डेटा है ये, तो वी वर सीइंग दिस चेंज इन ओआई नेगेटिव. देखो कितना दिस गाइस हैव अनवाइंडेड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट सेलर्स. मतलब दे आर सो स्कैर्ड. ओके नाउ मतलब तो जहां पे भी ये अनवाइंड कर रहे हैं वहां पे जाने का प्रोबेबिलिटी कम है अभी मार्केट का. ऐसे फिक्स नहीं है पर प्रोबेबिलिटी इज ह्यूज कि मार्केट बहुत ऊपर नहीं आया अभी कल तक, क्योंकि दिस इज कल तक का एक्सपायरी राइट. तो आई थिंक इसके सब्सिक्वेंट कॉल्स में भी जीरो जाने के पॉसिबिलिटी है. तो वील ट्राई टू मेक इट मोर एक्यूरेट दो. अभी मेरा कल का बायस क्या होने वाला है? Okay so first thing is this is a very important support for me because market ने यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया है and then it come down. okay so for me whenever the market goes up, मान लो कल ही गया अगर, तो मेरे हिसाब से 53,800 पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट. so I expect this call to go to zero, which means if you are conservative you should sell at least 53,800 and above. अगर बहुत ही सेफ खेलना है 54 का बेच दो, जाके आपको 20 रुपीज मिल जाएंगे वहां से. ठीक है, so that will translate to 0.3% of a capital. But yeah, I expect 53,800 and above calls to go to zero tomorrow. Now let's go over जो मेरे ट्रेड्स थे, मैं हमने क्या किया मेरे और निकी के. I told you हमने 10 का पुट और 30 का कॉल मारा था. ठीक है, ओपनिंग पे क्या हुआ, ये पुट जो था 10 का वो 10 पे ही था और कॉल जो था 30 का वो 10 पे था.
ठीक है. सो एट दिस मोमेंट आई टोल्ड यू मार्केट इज बिलो 53,800 बराबर. मैंने बोला था आपको, आप जाके चेक करो वीकली एनालिसिस में. विच मीन्स आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड. अभी मेरा कॉल तो प्रॉफिट दे दिया ना मुझे 20 पॉइंट्स, 0.3% तो यहीं से मिल गया. और पुट कॉस्ट टू कॉस्ट है, पुट में कोई लॉस नहीं है. तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू कट माई पुट ऑप्शन. क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा बायस जो है नॉन डायरेक्शनल नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शनल चाहिए. तो मैंने पुट काट दिए और कॉल को जस्ट रोल डाउन करते गया मैं. आफ्टर सम टाइम ना, तो रोल डाउन करते गया मैं. तो दैट्स हाउ मुझे मस्त प्रॉफिट मिला आज. एंड कल भी मेरे हिसाब से 53,800 एंड अबव के कॉल जीरो जाने चाहिए. अभी एक रिस्क क्या आ सकता है मार्केट में कल के लिए, कि टुडे दैट सेबी का बोर्ड इज लाइक डिस्कसिंग सम पोटेंशियल चेंजेस what they can do for tomorrow. Okay, probably one expiry per week or something they'll try to keep. So that maybe, I don't think so, but like maybe there can be some impact uska in a gap. Okay, so that is the risk for tomorrow. So I'm telling you very very, listen properly. I'm telling you 0.5% अगर उड़ा कल, गेट आउट मेरे हिसाब से. कितना भी मान लो, चलो मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉल जीरो जाएगा ना, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल. But if you're down 0.5%, I think you should exit your trade regardless. वो गया, doesn't matter if that analysis is correct or not. First thing, risk management should be correct. Okay. और मेरे हिसाब से तो see what is going to happen. Lot of times I've covered this many times on my YouTube educational videos also. ये बेरिश कैंडल है ना, इसके बाद बहुत बार अगर मतलब गैप डाउन खुलता है ना अगर, और ये ऊपर आने लगता है, तो मेरे हिसाब से देन ट्राई टू प्ले फॉर अ डब्ल्यू हियर. ठीक है. then what is going to happen, you're going to sell your calls, you're going to sell your puts, so then the probability of a very good profit becomes very high for you. सिर्फ कॉल सेल वालों में अगर गैप डाउन खुलता है तो मैंने बहुत बार देखा है ये बड़ा ऊपर आता है, फिर कॉल स्पाइक करता है बहुत बार. तो इफ यू आर सीइंग गुड प्रॉफिट्स, आई थिंक यू मे एग्जिट एंड लाइक वेट फॉर अनदर ट्रेड आल्सो. नाउ आई विल गो ओवर few questions, okay, we got in the previous video. Now first question was, do I sell naked options? The answer is yes, I sell. मेरे I have my own रीजन एंड माई ओन मैथमेटिक्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन हेजिंग. इसके मेरे बहुत रीजन है, मतलब मैं बाद में, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है वो. जब भी कोई उल्टा गैप होता है ना, मान लो चलो कल ही हो गया अगर, तो पीपल आर गोइंग टू गिव मी दैट माई ओन लॉजिक. बट लॉन्ग रन में इफ आई कैलकुलेट, इफ आई हेज ऑल द टाइम, नो, it doesn't make sense to hedge then. That's why I'm always I sell naked options overnight. The second thing was like, do I target this 1% per week or more after charges, मतलब और before charges. तो मेरा चार्जेस ही नहीं आता है ज्यादा, मैं क्योंकि ज्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ. एंड मेरा ब्रोकरेज भी, आई टोल्ड यू, इट्स कैप्ड एट 2,000 रुपी पर मंथ. सो इट्स एज गुड एज फ्री ब्रोकरेज सॉर्ट ऑफ, मतलब बिकॉज इन अ बिग अकाउंट नो 2,000 रुपीज डजंट मैटर टू यू. तो नो, I would say I have like almost equivalent to zero charges. And third one was the latest comment I saw, like, do you primarily trade in Bank Nifty? Yes, I only trade in Bank Nifty. मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट है यहाँ पे. I think it's very easy to trade and make money in Bank Nifty. I think indices like Nifty are the hard ones, because yesterday also I was having this debate with a person on YouTube, but I really don't know how people love Nifty. It's beyond me. Maybe they are doing some non-directional trading or something like that. Maybe, you know, if the market goes sideways, they get a doji, so they'll make a killer profit. We are not like that. I need market to move. If market moves like this a lot, then I'm going to make damn good profit. If it's sideways, I won't be making too much, like as much as they will. तो स्टाइल पर डिपेंडेंट है. प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को आई थिंक दे लव बैंक निफ्टी, ऑल ऑफ देम. ओके, निफ्टी का लेट्स चेक व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी. सी, फर्स्ट थिंग तो निफ्टी इज बिलो द लास्ट वीक्स लो, व्हिच इज अ वेरी वेरी बेरिश साइन. ओके, 3 वीक से ऊपर जा रहा है. अभी फर्स्ट टाइम इज क्रॉस लास्ट वीक्स लो. वेरी बेरिश. ओके, नॉट बुलिश. वेयर इज निफ्टी सपोर्ट? निफ्टी सपोर्ट इज एट 25,078. डेली चार्ट पे विच लेवल डिड आई टेल यू टू वॉच फॉर अ प्लेइंग शॉर्ट? इट्स वाज 25,850 का लेवल. ओके, तो उसके नीचे वी हैव क्लोज टुडे. Now what we're going to do, we are going to play a bearish in Nifty only. अभी इस कैंडल को देख के, because ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है, तो we are going to play bearish in Nifty. Your next support probably will come at 25,450 level. Okay, and this zone 25,350 तक, 350 से लेके 450 तक ये जो जोन है, वहां पे नेक्स्ट सपोर्ट आ सकता है आपका. अभी यहाँ तक फॉल आ सकता है इजीली, अभी मुझे तो दिख रहा है उतना. एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे why this was important? See, because this is 1 2 3 and today 4 टाइम्स ब्रेक होने के बाद इट्स क्लोज बिलो दैट. ओके, नाउ अगर किसी ने बेरिश ट्रेड नहीं लिया है ना, अगर किसी ने, और कल लेना है, तो मान लो अगर कल फ्लैट खुलता है, देन थोड़ा फर्स्ट 1 या 2 कैंडल्स के बाद, इफ इट ब्रेक्स द करंट डे लो कल, देन यू कैन ट्राई टू सेल दीज कॉल ऑप्शंस. मतलब निफ्टी में. बैंक निफ्टी में तो आई थिंक इट विल बी इजियर बिकॉज उसी दिन एक्सपायरी है. निफ्टी में इट्स हार्डर बिकॉज लाइक देयर इज 1 डे हॉलिडे व्हिच मे रिजल्ट इन अ उल्टा वाला गैप. मान लो नीचे क्लोज होता है ना, तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, इफ देयर इज अ हॉलिडे, आई हैव सोल्ड कॉल्स, ओके, मेनी टाइम्स, एंड वो उल्टा ही खुलता है, मतलब गैप अप खुलेगा फिर.
So I'm not too sure about Nifty. I think best would be to come on Thursday and play Nifty. Cool. And जो लेके गया है आई थिंक मतलब शॉर्ट साइड में रहना चाहिए उनको. एंड बी वेरी केयरफुल बिकॉज द मार्केट हैज कम डाउन, स्पेशली इफ यू गेट अ गैप डाउन ओपनिंग और नीचे जाता है तो ट्राई टू प्ले फॉर अ डब्ल्यू पैटर्न हियर. ओके, तो हियर वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग एंड डब्ल्यू के लिए ट्राई करो. अगर गैप डाउन खुलता है तो इफ इट ओपन्स फ्लैट प्ले फॉर अ ब्रेक ऑफ द करंट डे लो. देन मतलब वहां पे जब कंटिन्यू होगा मूवमेंट है then we will try to short more. And gap up may what we have to do, I think gap up may it will form a range, okay, and then it will eventually test the previous day closing and then it will decide ऊपर जाना है या नीचे आना है. ठीक है, तो गैप अप में आई एम एक्सपेक्टिंग एट इधर भी गैप अप हुआ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इमीडिएटली ऊपर जाएगा वो और भाग जाएगा. मुझे लगता है गैप अप होने के बाद भी इट विल कम डाउन एंड देन गो अप. सो दिस व्हेन इट कम्स डाउन योर प्रीमियम्स विल डिके अ लॉट और दे विल एटलीस्ट कम कॉस्ट टू कॉस्ट. ठीक है, इफ यू सोल्ड कॉल्स मेरे हिसाब से तो दैट्स इट आई थिंक फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. इफ देयर समथिंग आई एम फॉरगेटिंग ओके तो देन लेट मी नो, आई विल कवर इट इन द फ्यूचर वीडियोस. एंड दैट्स इट आई थिंक. तो जस्ट टू समराइज माय लॉजिक्स, सपोर्ट ब्रेक हो गया है, सपोर्ट के नीचे वी हैव क्लोज, दैट्स व्हाई वी वर बेरिश. आवर ट्रेड वाज ऑसम बिकॉज़ इट ओपनड विद ह्यूज प्रॉफिट्स एंड आल्सो the open interest data was negative. Okay, so that also helped us. And that weekly candle का logic, if you remember, two green candles, one pause candle, and उसके बाद नीचे आना चाहिए एक, that also logic. So all these logics I have shared with you. Note them down somewhere. And lately, तो I'm speaking to some people. What they are doing, they basically whatever video we make, okay, उसका logic they write it down and then they ask us questions, which I love. Okay, which means they are really hardworking people. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है. So if you want, you can do the same thing. Whatever logics I'm giving you or Nikki gives you, write them down and see them after like 2-3 months ना आपका learning क्या आ रहा है price action पे. ठीक है, that's what me and Nikita also do. हम यही मतलब we keep trying to learn ऐसे ही. So that's it I think for this video. I'll see you very soon. Bye bye and don't forget to hit the like button. I'll see you tomorrow.